বলে যেমন নন্দ ঠাকুর বলছে না, পশু পাখি জুড়ে পাষাণ ভিতরে শুনি যার গুণ গাথা, পশু পাখি জুড়ে পাষাণ ভিতরে শুনি যার গুণ गाथा। रतन दास ठाकुर इस कीर्तन में कहानी अहो गोविंद की ऐसे प्रेममय कथा, गुण कथा, जिस कथा को सुन करके वृंदावन के पशु पक्षी तो छोड़ दीजिए, जब तक पत्थर भी क्या होता था बोले ये तो मैंने इधर पशु पाखी जुड़े पाषाण ভিতরে শুনি যার গুণ গাথা। এখনো পর্যন্ত বৃন্দাবনে যদি আপনারা যান, বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে করতে 84 করে পরিক্রমা করতে আপনারা যেখানে যাবেন, চরণ পাহাড়ি রয়েছে যেখানে কৃষ্ণ প্রচারণ করতেন আর বংশী ধ্বনির দ্বারা গায়গুলোকে গরুগুলোকে একত্রিত করতেন। কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনে সেই সকল পাথরগুলো এখন পর্যন্ত গলে গিয়েছে, যার মধ্যে কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন রয়েছে। বলে কি করে জানবেন ওটা কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন? শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে কৃষ্ণের চরণের মধ্যে 19 প্রকার চিহ্ন রয়েছে, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ এগুলো চিহ্ন রয়েছে। আসল কথা প্রসঙ্গে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম যে বৃন্দাবনে পশু পক্ষী থেকে আরম্ভ করে এমনকি বৃক্ষ থেকে আর বিছা থেকে আরম্ভ করে সর্প থেকে আরম্ভ করে সবকিছু তারা গোবিন্দের অনুকূল প্রতিকূল না, সেখানে কোনো বিছা কাউকে কামড়ায় কাটে দংশন করে। তো রাধাজি যখন মান করে চলে গেলেন, কৃষ্ণ বঞ্চিত বাজালেন রাধাজির মান দূর করবার জন্য, মানকে দূর করবার জন্য, কিন্তু রাধারানীর মান সেখানে দূর হলো না, নষ্ট হলো না। তখন কৃষ্ণ কি করলেন? যোগমায়ার শরণাপন্ন করলেন। তখন কৃষ্ণ যোগমায়াকে স্মরণ করলেন। এখন যখন যোগমায়াকে যখন স্মরণ করলেন, তখন যোগমায়া কি করলেন? যে রাধারানী ওই যে জঙ্গলের মধ্যে যাচ্ছে না, বৃন্দাবনে যদি যান আপনারা দেখবেন ওখানে জঙ্গলের রাস্তাগুলো থাকে, ছোট ছোট রাস্তা, দুই ধারে থাকে কাঁটের ঝাড়ি থাকে, কাঁটাকে ঝাড়ি, কাঁটের ঝাড়ি থাকে। और रास्ता अतीव संकीर्ण रास्ता, अतीव संकीर्ण रास्ता, वेरी नैरो है। केवल एक व्यक्ति যেতে পারে, दूसरे व्यक्ति जा नहीं सकते। और দুই तरफ रास्ता, দুই तरफ के कांटार झाड़ রয়েছে। আবার বৃন্দাবনে দেখবেন ওই রাস্তাটা নিচু আর দুইটা কিনারা, রাস্তার যে কিনারা এজ অফ দ্য শোল্ডার ও কি থাকে উঁচু হয়ে থাকে, আর জায়গা যেখানে ওই কাঁটার ঝাড়গুলো থাকে। তো আপনি দৌড়িয়ে কোথাও এদিকেও যেতে, বাঁয়ে যেতে পারবেন না, ডায়েও যেতে পারবেন না, বাইরে যা नहीं सकते। तो राधा जी जब कोई जाके बोला হচ্ছে ব্রজভাষা যাকে বলছে পগদণ্ডী বলা হয়। কি বললাম? पगडंडी सुनो, छोटा सा रास्ता है, छोटा नैरो पैसेज का, उसके हिंदी में ब्रज भाषा में उसे कहा जाता है पगडंडी कहा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति किसी तरफ से उस रास्ता में जा सकते हैं। जब राधा जी इस समय चल रही है, जंगल गली जंगल की तरफ चली गई, बीच रास्ते में कितने समय एक सांप, विषधर सांप, कृष्ण सर्प है 3-4 फीट लंबा विषधर फन को ऐसे उठाया और विशेष करते हुए राधा जी सामने आने लगी। राधा जी वो सांप को देख करके डर गई और वो सांप जो है अपनी जिहा को लपलपाते हुए जिहा को ऐसे हिलाते हुए, आंख जो है बिल्कुल लाल लाल आंख, जैसे लोहे के यदि आग में तपाया जाए जैसे लाल लाल हो जाता है, उसी प्रकार सांप के जो दोनों आंख जो है लाल लाल ऐसे और ऐसे लपला हिंस कर रहे हैं,
ऐसे करके फन ऐसे कर राधा जी देख करके डर गई, आगे तो जा नहीं सकती है और दाएं भी जा नहीं सकते, बाएं भी जा नहीं सकते है। इतना समय राधा जी की कौन रक्षा करेंगे, इसमें फिर राधा जी घूम करके आई, कृष्ण कृष्ण महाबाहु रक्षमा, हे कृष्ण कृष्ण मुझे रक्षा करो। ऐसे करके राधा जी कृष्ण को आलिंगन कर लिया और राधा कृष्ण के दोनों की मिलन हो गया, मान चली गई। हिंदी बुझते बच्चे? हिंदी बुझे ना? अरे हिंदी बांग्ला तो एक ही तो। কোনো সময় রাধারানী মান করে যখন চলে গেলেন রাধাকুণ্ড থেকে, তখন কৃষ্ণ বংশী বাজালেন রাধারানীর মান ভঙ্গ করবার জন্য, কিন্তু রাধারানী সেখানে মান ভঙ্গ হলো না। রাধারানী যখন ওই জঙ্গলের মধ্যে চলে গিয়েছেন, জঙ্গলের দুই দিকে কাঁটার ঝাড় ছিল, রাধারানী ডায়ের দিকে যেতে পারবেন না, বায়ের দিকে যেতে পারবেন না। এমন সময় কৃষ্ণ যোগ মায়াকে স্মরণ করলেন। যোগ মায়া সেখান থেকে বিশাল একটা সাপ রূপে প্রকটিত হলেন, বিষধর সাপ, যাকে বলা হয় কেউটি সাপ বলা হয়, কৃষ্ণ সর্প। আর কৃষ্ণ সর্প এইভাবে ফন্ট দিয়ে যখন উঠে দিয়েছে, রাধারানী ভয় পেয়ে গেছে। রাধারানী যখন ভয় পেয়ে গেছে, তখন রাধারানী বিচার করলেন কি করবো, আগে তো যেতে পারবো না, ডাইনে যেতে পারবো, পিছনে যেতে পারবো না। তখন রাধারানী কি করলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু, হে কৃষ্ণ আমায় রক্ষা করুন বলে দৌড়ে দৌড়ে এসে গোবিন্দকে সেখানে কি করলেন, আলিঙ্গন করলেন। আর এইভাবে রাধা গোবিন্দের সেখানে মিলন হলো। তাৎপর্য কি আমি বলছিলাম যে গোলক বৃন্দাবনে সেখানে যতগুলো পশু পক্ষী থেকে আরম্ভ করে সাপ সর্প থেকে আরম্ভ করে যা কিছু রয়েছে, তারা সকলেই রাধা গোবিন্দের সেবার অনুকূল, জানি রাধা গোবিন্দের কিভাবে মিলন হবে। তাদের কোনো প্রতিকূলতা নেই, সেখানে সাপ কাটে না, সেখানে বাঘ কাউকে খায় না। রয়েছে তো বাঘ রয়েছে, সিংহ রয়েছে, সাপ রয়েছে, বিচ্ছু রয়েছে, কিন্তু তারা কখনো কারোর অনিষ্ট করে না। কি জন্য রয়েছে তারা সেখানে, না রাধা গোবিন্দের মিলন করাবার জন্য। এই যে বলছেন যৎকিঞ্চিৎ তৃণকুলম কিকট মুখম গোষ্ঠে সমুচিত সর্বানন্দ মুকুন্দ দৈতম লীলানুকুলম পরম শাস্ত্রে স্ফুটিত নিশ্চিত জাঞ্চয়া ব্রহ্মাদি সস্প্রিয়ন মধ্যম তয়া বন্ধু। ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতাগণ সেই বৃন্দাবনের ধুলি আর বৃন্দাবনের প্রেম মাধুর্য প্রাপ্তি করবার জন্য না জানি কত কঠোর তপস্যা করছে। ব্রহ্মা এখনো পর্যন্ত পাথর হয়ে রয়েছে। আপনারা যদি বর্ষানা যান, সেখানে দেখবেন দুইটা পর্বত রয়েছে, একটা হচ্ছে বিষ্ণু পর্বত আর একটা হচ্ছে কি পর্বত, ব্রহ্ম পর্বত। স্বয়ং ব্রহ্মাজি রাধারানী চরণ কমল স্পর্শ পাওয়ার জন্য সেখানে ব্রহ্ম পর্বতগুলি বিরাজমান রয়েছে। এমনকি ভগবান বিষ্ণু তিনি সেখানে রাধারানীর সেই প্রেম মাধুর্য রস আস্বাদন করবার জন্য তিনি সেখানে বিষ্ণু পর্বত রূপে তিনি বিরাজমান রয়েছে। আবার তার নন্দীশ্বর পর্বত, আবার নন্দগ্রামে স্বয়ং শিবজি সেখানে কৃষ্ণের চরণধুলি আর কৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য আদি দর্শন দর্শন করবার জন্য তিনি সেখানে নন্দীশ্বর পর্বত রূপে তিনি বিরাজমান রয়েছে। কথাটা এই জন্য বলছিলাম যে নিত্যগুলো বৃন্দাবনে যা রয়েছে তারা চিন্ময় রাধা গোবিন্দের সেবার জন্য তারা সদা সর্বদা উন্মুখ রয়েছে, তারা কখন প্রাকৃত বস্তু না। তথাপি ভগবান বিচার করলেন এই ভৌম জগতের মধ্যে জীব মায়ার দ্বারা কলুষিত, মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কইল বেদাদি পুরাণ। মায়াবদ্ধ জীবের তাদের কৃষ্ণ স্মরণ নাই, কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েছে। কৃষ্ণ বলে সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়াদারে দেয় সংসারে দিল। কৃষ্ণকে ভুলে আমরা এই সংসারের মধ্যে এসেছি, এই সংসারের মধ্যে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। মাতা পিতা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার পালন পোষণে আমরা লেগে রয়েছি। বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি।
আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তনের মধ্যে বলছেন যে আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন 6 মাসের সময়, এই 7 মাসের সময় ভগবান আমাদের একবার দর্শন দিয়েছিলেন। অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছিলাম, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, প্রভু এই মাতৃগর্ভ থেকে আমায় মুক্তি দিন, ভগবান আর জন্ম নিয়ে তোমারই ভজন করব। ভগবান বললেন আচ্ছা আর 2 মাস অপেক্ষা করো। ক মাস হয়ে গেল? 9 মাস। 7 মাসের সময় ভগবান দর্শন দিলেন। এইগুলো জনম জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিলে কদিন দাসে। আরে তখন ভাবিনু লোভিয়া জনম ভজিব তোমার চরণ। তখন ভাবলাম যে প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই তোমার ভজন করবো। কিন্তু যখন মাতৃগর্ভ থেকে আমরা জন্ম নিলাম, মায়ার এমন একটা প্রকোপ রয়েছে, ভগবানকে আমরা ভুলে গিয়েছি, আর ভুলে গিয়ে এই সংসারের মধ্যে রয়েছে। ত্রিতাপ যারা দগ্ধীভূত হয়ে আমরা এই সংসারে রয়েছি। ধন উপার্জন করবার জন্য বিদ্যা আদি অর্জন করলাম, ধন উপার্জন করে দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে অনেক অর্থ সংগ্রহ করলাম। তারপরে জমি জায়দাদ খরিদ করলাম, তারপরে বিবাহ আদি করলাম। বিবাহ আদির পর আবার কি হলো? পুত্র কন্যা আদি হলো। সেই পুত্র কন্যা আদিকে পালন পোষণে আমরা লেগে গেলাম, তাই না? এই করতে করতে বৃদ্ধকাল এসে গেল, আর বৃদ্ধকাল আ গেল, সব সুখ ভা গেল, পীড়া বসে বৃদ্ধকাল যখন এসে গেল তখন কি হয়? আর শরীর চলে না। ইদম শরীরম শতসন্ধি জর্জরম, এই শরীরের মধ্যে অনেক দুঃখ কষ্ট আসে, জয়েন্টগুলো ব্যথা হয়, স্পন্ডিলাইটিস হয়ে যায়, সর্দি জুখাম কফ বাত এগুলো সেই শরীর চলে, ভজন হয় না। মনে করছিলাম বৃদ্ধকালে ভজন হবে, কিন্তু বৃদ্ধকাল ভজন হবে না। যৌবনের সময় পুত্র কন্যা আদি পালন পোষণ আর অতীতে চলে গেল, আর বৃদ্ধকাল তো শরীরের মধ্যে এসে গেল। আর ভজন কোথায় হবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম যে প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে তোমারই ভজন করবো, কিন্তু আর ভজন হলো না। এই সংসার মধ্যে ফের বৃদ্ধকাল এসে গেল, বৃদ্ধকালের পর ফের মৃত্যুর সময় এসে গেল, শরীর চলে গেল। এই জন্য বলছেন এই সংসার মধ্যে জীব এইভাবে অনন্তকাল ধরে এই মৃত্যুর চক্কার মধ্যে ঘুরতে চলে যাচ্ছে। এক জন্ম নয়, রোটেশন চলছে কব তক, বারবার। তাবৎ জননম তাবৎ মরণম তাবৎ জননী জননী শরণম। বারবার এই সংসার থেকে আমরা মৃত্যুকে বরণ করছি, আবার মৃত্যুর পশ্চাৎ আবার মাতৃগর্ভের মধ্যে প্রবেশ করছি, আবার মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসছি, আর ওই একই কাজগুলো করে চলছি। তাই ভগবান বললেন যে জীবকে কিভাবে উদ্ধার হবে। জীবকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান কি করলেন? তার নিত্যগুলো বৃন্দাবন ধাম থেকে তার নিত্য পরিকর দিয়ে তিনি পাঠালেন। আবার তিনি কখনো নিজেও আসছেন, আবার তাতেও হচ্ছে না। তাই ভগবান আবার কি করলেন? জীবের সেবা গ্রহণ করবার জন্য এই বিগ্রহ রূপে তিনি প্রকট হলেন। কি রূপে? বিগ্রহ রূপে প্রকট। এই যে বিগ্রহ আপনারা দর্শন করছেন, এই বিগ্রহ কেউ কাঠ পাথর নয়, এই বিগ্রহ হচ্ছে চিন্ময় বরান ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ। এই বিগ্রহ হচ্ছে চিন্ময়। এই বিগ্রহ কথা বলে, এই বিগ্রহ আপনার সঙ্গে লড়াই করবে, এই বিগ্রহ আপনার সঙ্গে আবার প্রেম প্রীতি করবে। কখন করবে? যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চার। বৃন্দাবনে যাবেন, ঠাকুর রয়েছেন মদন মোহন, সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে প্রেম কলহ করত, প্রেম কলহ করতে। সনাতন গোস্বামী পাদ
ठाकुर जी की कोई अंगीठा बड़े सूखा रोटी जो है थोड़ा पानी डाल करके हाथ में ऐसे करके आग में जलाया, जला हुआ जो है वो अंगीठा रोटी जैसे कहा जाता है, उसको दांत में काट नहीं पाएगा, इतने सख्त, आधा जल गई और आधा भी दांत में आप काट नहीं सकते। ठाकुर जी के भोग लगाया, मदन मोहन करने लगे सनातन हर रोज तुम यही खिलाती है, अरे थोड़ा तो नमक दिया कर कम से कम, पनीर तो नहीं दिया, कोई बात नहीं है, और कोई सब्जी तो बनाया नहीं, दाल तो भी बनाया नहीं, सब्जी नहीं बनाया, कोई भी बात नहीं है, कम से कम थोड़ा तो नमक तो दिया है, कहते ना नमक बिना व्यंजन जैसे। सब्जी में सब कुछ मसाला डाल दिया, अपना रसोई बना ना, रसोई में की डाले आगे लवण डाल दिया, एक विदेशी लोग रसोई बना ना आगे लवण डाले, और बस अंत में देखा जाए भूल ही जाए और सेगुला खावार যোগ্য না, घास भूसा। मैं विदेश में जाता रहता ना, बोले रसोई बना, बोले हाँ रसोई बना, इधर से इंडिया से जो है सब प्रकार के मसाला खरीद करके ले जाते हैं, बोले इंडिया के लोग बंगाली लोग जो अच्छी तरह से मसाला लेके चकाचक बनाते हैं, तो इधर के भी जो है जीरा मसाला खरीद लिया, हल्दी पिसा हुआ हल्दी खरीद लिया, सब कुछ खरीद करके लेकर चले जाते हैं, बोले अच्छी तरह से बनाएंगे महाराज को खिलाएंगे। तो किंतु उसको तो बनाना आता ही नहीं है, ना उनके संस्कार है बनाने का, तो सारे मसाला डाल दिया और नमक डालने के अच्छा कोई खाया जाता है, सारे मसाला डाल दो, जीरा डाल दो, अदरक डाल दो, अदरक मैंने आधा डाल दिया, किंतु एक चीज डालने के भूल गया, कौन सा? कोई खा पाए? आप बना के डाल दीजिए, सारे मसाला डाल दिए। मैं कभी कभी देखता हूँ विदेशी कहते हैं महाराज हम अच्छी तरह से आपको बना देंगे, अच्छी जगह बनाओ, और यहाँ से आ करके अच्छा सारे मसाला खरीद करके पूरा उसे भर करके रखा, बनाया बहुत सुंदर, देखने तो अच्छा लग गया, खाने के लिए घास भूसा जैसे मनुष्य खाने के लिए जरूरत नहीं। क्यों? एक चीज भूल गया, कौन सी चीज डालने में? नमक। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं भक्ति जो नहीं करते हैं, बोले उनके सारे साधन भजन कैसे हैं? नमक बिना व्यंजन जैसे। क्या बोला? नमक बिना व्यंजन जैसे। अरे बिना नमक से कुछ मत, अगर अधिक नमक डाल दो और ज्यादा नमक डाल दो तो वो सब्जी कोई खा नहीं पाएगी, है कम डालो तो खा नहीं पाएंगे, और ज्यादा डाल दो और भी कोई खा नहीं पाएगा। नमक उतना ही डालो जिसमें स्वादिष्ट हो, ठीक है? चलो मैं जिस कथा मैं बोल रहा था जी, इस संसार के जीव भगवान की भूल गए, इसलिए भगवान ने क्या कि कभी साधु रूप में आया, ग्रंथ रूप में आया, भागवत रूप में भी आया, तो उससे भी जीव के कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? जीव सेवा कैसे करे? इसलिए भगवान एक विचार करने लगे, मैं विग्रह रूप में प्रकट हो जाता हूं। विग्रह क्या है? विग्रह शब्द की अर्थ है क्या चीज? विग्रह शब्द अर्थ होच्छे कि विशेष रूपेण ग्रहण। भगवान भक्ति थाकुक और ना थाकुक अपना सामान्य भगवान को अर्पित करें, भगवान ग्रहण करें। भक्ति थाकुक तो ग्रहण करबी, बोले भक्ति यदि नाও থাকে, सनातन में बृहद भगवतार मध्य बोलছেন यदि बिना भक्ति तो यदि विग्रह यदि केउ देय भगवान ग्रहण करे, है बोले क्या ना? भगवान यदि मूर्ख है, ये तो जानता ही नहीं है, तथापि तो मुझे तो दिया, श्रद्धा से दे और श्रद्धा से दे, है भगवान को मैं ग्रहण करूं। वो कैसे ग्रहण करते? इसलिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं भक्त और भक्त सभी की वस्तु के ग्रहण करने के। चलो ग्रहण कर लेना जिससे उसकी कल्याण हो जाए। और विग्रह रूप में भगवान कैसे मौन व्रत अवलंबन करते रहते हैं। मौन व्रत जानते हो? मौन व्रत में कीप साइलेंस। आप ज्यादा नमक भी डाल दो सब्जी में, भगवान आपको बोलेंगे नहीं, अरे सब्जी में तुम्हारा नमक ज्यादा है। वो तो बोलेंगे किसके साथ? सनातन गोस्वामी पाद हो, ऐसे प्रवीण भक्त कहेंगे। जैसे मैंने सनातन गोस्वामी पाद के सुनाया, कथा सुनाया, मदन मोहन कहने लगे इस सनातन हर रोज तो मुझे
ये खिलाते हुए बिना नमक के थोड़ा सा नमक दिया, गले से मेरा अटक गया, थोड़ा सा नमक डाल दो पानी के लिए। सनातन गोस्वामी पाद ने क्या कहा, आज नमक मांग रही हो, काल क्या मांगोगे, सब्जी मांगेगी, काल कहोगे पनीर की सब्जी लाओ, बोले यही करने के लिए मैं थोड़ी आया है। बोले जाओ तुम्हारे लिए खाने की इच्छा है, नंदगांव में चले जाओ, तुम्हारे पिताजी के 9 लाख धेनु है, गाय है, चकाचक वहीं पर खाना जाओ, घी दही दूध पनीर सब्जी वहीं पर मिलेगा, वहीं पर जाओ। ठाकुर जी कहने लगे सनातन तुमको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमको छोड़ करके मैं कहीं नहीं तुम्हारे पास ही हूँ। तो ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद भी कम नहीं है, ढीठ है, ढीठ समझते हो, ठाकुर जी जितनी है। ठाकुर जी बोले नहीं तुमको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा कहीं, सनातन भी ढीठ है, सनातन गोस्वामी पाद में मेरे पास रहना है तो यही खाना पड़ेगा, बिना नमक के आटे के रोटी तुम्हें खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले साले तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं, ब्रज की गाली देते हैं ना, ब्रज की गाली कहते हैं साले तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं और मैं तुमको नहीं छोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी फिर बोले सनातन एक काम कर, मैं करा ले तो मेरा व्यवस्था, नमक की व्यवस्था जो कुछ खाने की व्यवस्था नहीं कर लेता हूँ, मेरा बचपन की तो आदत है, चकाचक खाने की मेरा आदत है। देखो हम ब्रज के रहने वाले हैं, ब्रज के जो रहने वाले थे गाय की दूध है, घी है, पनीर, ये चकाचक हम खाने वाले। जब तू शांत कहाँ बैरागी है, तेरे पास रहना तो तेरे पास यही सूखी रोटी खाना पड़ेगा। अरे कम से कम तो नींबू की अचार दिया कर, नींबू के अचार तो दिया कर। सनातन बोल से नींबू का अचार कुछ नहीं मिलेगा सारे, खाना तो खा चले जाएंगे से। ठाकुर जी के सनातन गोस्वामी बोले, ठाकुर जी भी गाली देने लगे, साले खाना है तो खा। एक बार मैं वृंदावन परिक्रमा कर रहा था, एकादशी के दिन परिक्रमा कर रहा था, कुछ ब्रजवासी लोग मिठाई बांट रहे थे, तो हम लोग थोड़ा उसी घर पर मिठाई लेना नहीं है, हम चलते जा रहे हैं। बोले साले यहाँ पर भाग रहे इधर आ जाए, मिठाई लेकर चल। ब्रज की मिठास ऐसे है, कोई व्यक्ति वृंदावन जा रहे थे, ब्रज की तरफ जा रहे थे, बहुत समय हो गया चलते चलते, कोई व्यक्ति के पूछा भाई ब्रज कितने दूर है बता, कितने किलोमीटर रह गया ब्रज। कर बोले साले तुमको बता दें, सुन जहाँ पर लोग गाली देना शुरू करेंगे ना वही ब्रज है। ब्रज चढ़ करके ऐसे मीठी गाली और कहीं से नहीं मिलेगा, है ब्रज के एक साले थे। बोले ब्रज छोड़ के बंगाल में जाइए और कहीं भी जाइए गाली नहीं देते, किंतु ब्रज में जाने के साले बोले साले बोले। तो सनातन गोस्वामी पाद उसी प्रकार बोले हमारे पास रहना है तो बिना नमक के यही खाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले भाई मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, तो करना है तुम कर लो, हमें क्या लेना देना है, हमें तो बैरागी बाबू मुझे तो भजन करना है, मेरे पास रहना है तो करो, तुम्हारे पूजा करना भजन करो, ये रसोई बनाना ये मेरा तो काम नहीं है। ठाकुर जी ने क्या चीज मैं व्यवस्था कर लेता हूँ। ठाकुर जी की माया की कौन जानते हैं, दैवी माया कौन जानते हैं, भगवान की जो है लीलामय लीला पुरुषोत्तम कौन लीला कब क्या करते हैं। एक बनिया जो है अपने नाव में बहुत कुछ सामान भर करके जमुना में जा रहे थे, नाव ठाकुर जी ने भी लीला कर दिया, वो बनिया के जो है नाव जो है जमुना के बालू में बिल्कुल अटक है, इधर से ठेले उधर से ठेले, वो नहीं जा रहा, ना आगे ना पीछे। बनिया विचार करने अभी क्या करे, 2-3 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, नाव जो है ना उधर ना उधर, टस से मस नहीं हो रहा है। बनिया विचार कर रहे मेरा तो सारा सामान तो नष्ट हो जाए, बिजनेस तो मेरा ठप हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो क्या करूं। बनिया बहुत दुखित था। एक ब्रजवासी मिले, ब्रजवासी बोले सारे क्या हो गया इधर, बोले क्या करूं मेरा नाव यहाँ पर बालू में जो है अटक गया, ना आगे है ना पीछे है। तो एक ब्रजवासी बोले देखो ये जमुना के किनारा में
मदन मोहन घेरा है, वहीं पर एक संत महात्मा रहते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा रहते हैं। वो शहीद के मंत्र झाड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। तो बुनिया आगे आकर के सनातन गोस्वामी पाद के बोले, ये बाबा मेरा 7 दिन हो गया, नाव तो टस से मस नहीं हुआ, अरे सारे सामान तो नष्ट हो जाएगा, मेरा बिजनेस तो ठप हो जाएगा, आप कुछ मंत्र झाड़ दीजिए। सनातन गोस्वामी बोले, मैं मंत्र कुछ नहीं जानते। जाओ वो हमारे ठाकुर जी के पास जाकर के प्रार्थना करो, ठाकुर जी कर देंगे। तो बनिया ठाकुर जी के मदन मोहन के पास आकर के बोले, ठाकुर जी मेरा नाव चले और इस बिजनेस में जितना मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, और आपकी सेवा में सब कुछ लगा दें। ऐसे कहने के साथ ही साथ देखो वो बुनिया के नाम अपने आप चलने लगे। और भगवान की ऐसी कृपा भी देगा, ठाकुर जी की तो करने वाले हुई है। बाजार में वो जितने सामान 10 गुना मुनाफा से बेच दिया। और देखो सारे पैसा को उन्होंने के विशाल भव्य मंदिर बना दी वृंदावन में, मदन मोहन मंदिर जो है। और केवल नहीं है, कितने गाय है और ना जाने कैसे उसका राजभोग उत्सव होने लगे। तो ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते। तो मेरे कहने की ये तात्पर्य, जो प्रेमिक भक्त जो होते हैं ना, उनके साथ भगवान लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनसे कोई सेवा भी ग्रहण करते हैं, ऐसे है। किंतु विग्रह के रूप में जो भगवान सबके एक विग्रह जो है क्या करते हैं, मौन अवलंबन करते हैं। जो साधारण भक्त के निकट भगवान क्या करते हैं, मौन माने बोलते नहीं चलते। जैसे ठाकुर जी का आप कुछ भी लगा दिया, ज़्यादा नमक लगा दिया, सब्जी में ज़्यादा नमक हो गया, तो ठाकुर जी आपके नहीं बोलेंगे ये ज़्यादा आज नमक हो गया, पर नमक नहीं दिया तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। सनातन गोस्वामी पाद होते ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा होते तो उससे लड़ते झगड़ते किससे है, जिसका प्रेम है। भाई घर में झगड़ा किसके साथ अधिक होता है बताओ, पति पत्नी में होता है, क्योंकि उसमें प्रेम है ना, है। और फिर दोनों भी मिलते रहते, झगड़ते दगड़ते हैं और रोज गाली गलौज भी चलते रहते, किंतु प्रेम होता है। किंतु वो रगड़ना झगड़ना वो नहीं था, वो वास्तव में वो एक प्रेम की एक दूसरी साथ कहा जाता है, वो एक प्रेम की कहा जाता है। उसमें कोई ईर्षा देश ही नहीं है, उसमें पति पत्नी में जो झगड़ा होते हैं ना, उसमें एक प्रेम की साथ यहाँ पर लगे जाते हैं। इसमें हमारे नीति शास्त्र में कहते हैं, ये पति पत्नी में कभी झगड़ा हो ना, बीच में तुम बिल्कुल मत जाना, उसके पचड़ में बिल्कुल मत जाना। तो आइए कथा में, ठाकुर जी नित्य गुरु वृंदावन धाम में, इस जगत में किस रूप में प्रकट हुए, क्या बोला, विग्रह रूप। क्योंकि मौन व्रत अवलंबन करते हैं, भक्त की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा जैसे करो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उससे तुम्हारे सुकृति भी बच जाता है। हमारे जीव से बाद एक उदाहरण दिया, एक गांव के एक मंदिर था, गांव से थोड़ा बाहर था, दूर था। तो ब्राह्मण नित्य प्रत्यह ठाकुर जी की आरती उतारते थे। एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि ठाकुर जी आरती उतार करके, ठाकुर जी आरती करके और घी बत्ती है ना वहीं पर छोड़ दिया। घी बत्ती बुझने वाला था, इतने समय एक चूहा आ गया, मंदिर के अंदर चूहा घुस गया। चूहा देखा घी के बत्ती के घी की सुगंध आ रही है ना, है, और चूहा ने किया कि उनके तीक्ष्ण दांत के द्वारा वो रुई की बत्ती को ऐसे पकड़ लिया। जब रुई की बत्ती के जब पकड़ लिया, दांतों से ऐसे पकड़ लिया और आग जलने लगी, है। और वो चूहे के जो है उनके सारे ये मुस्टा जो कुछ भी सब जल गया। और अंत में चूहा क्या कि और वो ठाकुर जी के सामने लूटपुट करने लगे। रुई तो उसमें दांत में लग गया ना, निकलते नहीं, और आग की फ्लेम तो ऐसे जलने लगे, उनके सारे जल गए। और ठाकुर जी के सामने ऐसे लोटपोट करते हुए अपने प्राण को छोड़ दिया। देखो हम लोग की भावना, ठाकुर जी की भावना कैसे है। ठाकुर जी कह रहे हैं ये तो मेरा आरती उतार रहे। वो चूहा जब ठाकुर जी के सामने ऐसे लोटपोट खाने लगे ना, है, और बत्ती ऐसे जलने लगी, हम ठाकुर जी के दिया जलाते हैं ना,
तो भगवान कहने लगे ये तो मुझे दिया जला दे। बोले ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे कि दिया भी जला दे, अगरबत्ती जला दे, कुछ भी करे, उसके फल क्या है मैं क्या बताऊं। देखो वो चूहा की आत्मा जो है बाहर तो आ गया और जाकर के एक राजकुमारी के रूप में जन्म ले लिया। किसके रूप में? राजकुमारी के जन्म ले लिया। बचपन से वो जो राजकुमारी है ना, किसी ने सिखाया नहीं, ना किसके किस कहा। छोटी सी जब थी 2-3 साल की थी, वह सैनी राजकुमारी जो है वो बत्ती लेकर के ठाकुर जी के दिया जलाने लगी है। देखो ठाकुर जी के दिया जलाना ना ये पहली सुकृति हो जाता है। यही सुकृति जब जितने पुष्ट हो जाते ना, और उसी के द्वारा वो भगवत भक्त संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है भक्तिस्तु भगवत भक्त संग न परिजायते सत्संग प्राप्त पूर्वी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब एकत्रित होता है तब साधु संग होता है, और साधु संग में तब भक्ति होती है, और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए देखो वो राजकुमारी बचपन से बाल्यावस्था से ही वो ठाकुर जी के बत्ती जलाने लगे, दिया जलने लगे, और उनके सुकृति जब हो गई और साधु संग प्राप्त हो गया, और साधु संग के द्वारा उसकी भक्ति हुई, और अंत में भगवान को प्राप्त कर। इसलिए जो विग्रह जो है इसलिए हमारे निकट प्रकट होते हैं, ये हम किसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर दें, एक दिया जला दो। यहाँ तक भी कहते हैं ठाकुर जी कहते हैं वो भी हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से अगरबत्ती कहाँ से खरीद करके ले आएंगे। बोले कोई बात नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं एक बार आकर के तुम हाथ जोड़ करके सिर को नीचे करा दो, बस विस्मित बार हो जाता है। दशाश्वमेधि पुनर्ति जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भुवाय। जो 10 अश्वमेध यज्ञ करने की जो फल होता है, एक बार ठाकुर जी के प्रणाम करने से उसे सैकड़ों गुना फल प्राप्ति हो जाता है। तो ठाकुर जी की प्रणाम करना ये कम नहीं जाता। इसलिए ठाकुर जी विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कोई एक बार तो मंदिर में आ जाए और मुझे प्रणाम भी कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है, अंत में ठाकुर जी को प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरि है तुम्हारे बोलिया संसार से जानते हैं। हरि है तुम्हारे बोलिया संसारे आसिया कई नाना विध व्यथा, उसमें नहीं है। और ये तुम्हारे बुलिया संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, तुम्हारा चरणे आसी आचे नाच बोलिबो दुखेर कथा। बोलो दुखेर कथा জানাইবো। अच्छा बोल। बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया कैवा नाना विध व्यथा। बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया कैवा नाना विध व्यथा। आए तुम्हारा चाराने आसी आसी हमें तुम्हारा चाराने आसी आसी हमें बोली बालू के रखा बोलिया तुम्हारे संसार आसिया ऐना नाना विध व्यथा। बोलिया तुम्हारे संसार आसिया ऐना नाना विध व्यथा। आई जननी जातारे चिरम जतन जननी आई विषम वंदना
प्रभु देखा दिया मरे मंजिले दिनो दासे प्रभु देखा दिया मरे दिनो दासे आई तकन भाविनु जन्म पाइया तकन भाविनु गरीब जनता जन्म होइन परिमाया जले ना होइन ज्ञान लाभ जन्म होइन परिमाया जले ना होइन ज्ञान तुम्हारे सतरे दिया प्रभु यामा आयाधार चीरे सजने उगले हतिया काटनु काला आधार चीरे सजने उगले हतिया काटनु काला संसार लगिला भाला जनका जननी जय बोलिया संसार लगिला भाला आज कन दिने दिने मलका होइया कन दिने दिने या कन दिने दिने मलका कर्म दीने दीने मलका होइया केनो मलका केनो मलका आरती चुदीने ज्ञानयो पगिला पद पारिया आरती चुदीने ज्ञानयो पगिला पद पारिया विदार गौरावे मर्मिने से देते विदार गौरावे मर्मिने से देते नानयो भजन करी भजन पालन करिए मने भूलिनो तुम्हारे हारी सजना पालन करिए मने हारी आमदाए गाना मकती मदाए गाना मकती गाना कदिया तरया
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. जय श्री गुरु गौरांग जय नित्य लीला प्रभु विष्णुपाद नारायण महाराज की